हेलो गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने स्कूल मॉडल कैंप स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास की फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन। इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। हिज फुल नेम वॉज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. He was born in San Francisco in 1874. His literary work first published in England in 1902, after that in USA. He received 4 Pulitzer Prize in poetry. His first Pulitzer Prize in 1924, second in 1931, third 1937 और fourth Pulitzer Prize received in 1943. He was one of the most popular and respected poets of the 20th century. He was also called a modern poet. He was died in Boston in 1963. Now I will tell you about the poem The Road Not Taken. This poem was first published in 1916. It was based on own experience, metaphorical poem and autobiographical poem. Autobiographical poem means a poem written on poet's own experience. This poem relates to a simple incident, but it has a deep meaning. All the Robert Frost poem has a deep meaning. So in this poem, one day a traveler going through a jungle. He was very confused when road diverged into 2 roads. He confused very much. He was not decided which road he should choose. He stayed there for a long time. He thought very carefully and makes his choice. Here the poet compares the road to different options in our life. There comes so many alternatives in our life whenever we choose one option out of so many options. This poem also gives us an important message that our future is depend on our present. What we choose today will determine what we will become tomorrow. So we should always careful about our choice in life. Now I will explain this poem stanza by stanza. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and I looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Here in this poem the poet want to say that when I was traveling through a jungle, through a forest, there the road diverged into 2 roads. Here the poet want to say that a yellow wood means a forest in which the leaves had turned yellow because of autumn season. यानी कि a yellow wood का मतलब क्या है कि एक ऐसा जंगल जिसमें जो पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके हैं। किसके कारण? ऑटमन सीजन के कारण। यानी कि पोएट क्या कहना चाहता है कि when I was traveling through a jungle, there the road diverged into 2 roads.
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कवि कहता है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एंड बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होने के नाते, क्योंकि मैं अकेला ही ट्रैवलर हूँ, अकेला ही इन रास्तों पर चलने वाला हूँ, इसलिए मैं एक ही समय में दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। लॉन्ग आई स्टूड, हियर द पोएट वांट टू से दैट आई स्टेड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड थॉट अगेन एंड आई लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। हियर द पोएट वांट टू से दैट I looked down one road as far as I could, यानी कि मैं एक रास्ते की तरफ देखता रहा, वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर, वहाँ तक जहाँ तक इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, कि जहाँ तक वो रास्ता कोई झाड़ियों में मुड़ नहीं गया। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। नाउ सेकेंड स्टैंजा, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. Here the poet want to say that first of all I saw the first road and then I took the other, फिर मैंने दूसरा रोड देखा जस्ट एज फेयर, ये भी उतना ही बढ़िया था जितना पहले वाला रोड था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, पोएट वांट टू से दैट आई थॉट दिस रोड वुड बी वेरी बेटर बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। ग्रासी मीन्स देर इज ए लॉट ऑफ ग्रास ऑन द रोड एंड वांटेड वेयर मीन्स ए वेरी फ्यू पीपल went to this road. Here the poet want to say that I took the other road just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. पोएट हमें क्या कहना चाहता है कि मैंने सोचा कि शायद ये रोड मेरे लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि इसके ऊपर क्या थी, इसके ऊपर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर का मतलब क्या है कि उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग चले थे अभी तक। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी कि उस समय तक उस रास्ते पर बहुत ही कम लोगों ने यात्रा की थी। हैड वोरन दैम रियली अबाउट द सेम, और जो लोग गए थे वहाँ पर वो रास्ता, दोनों के दोनों जो रास्ते थे वो एक समान दूरी तक एक जैसे ही घिसे हुए थे, एक जैसे ही बिल्कुल लग रहे थे। नाउ आई एक्सप्लेन द थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. In this poem, in this stanza, the poet want to say that both that morning equally lay, both the roads are similar, both the road were similar because no people had gone to that road from that morning, since that morning. Oh, I kept the first for another day. Here the poet feel very sorry. He say that क्या कहना चाहता है कि I kept the first for another day, कि मैं पहला रोड किसी दूसरे दिन ट्रैवल कर लूँगा। आज मैं दोनों रोडों पर नहीं चल सकता, इसलिए मैंने क्या है कि मैंने दूसरा रोड चूज कर लिया है और मैं पहला जो रोड है वो किसी और दिन ट्रैवल कर लूँगा। यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हम ये जानते हैं कि हर रास्ता क्या है, एक अपनी मंजिल की तरफ जाता है, एक लक्ष्य की तरफ लेके जाता है। आई डाउटेड, लेकिन फिर भी मुझे क्या हुआ, मुझे डाउट हुआ। इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं इस रास्ते पर मुझे दोबारा आना चाहिए। मुझे डाउट हुआ
कि क्या मैं इस रास्ते पर मुझे दोबारा आना चाहिए। यानी कि कभी भी यदि हम जीवन में एक रास्ता चूज कर लेते हैं और उस रास्ते पर जब थोड़ी दूरी तक हम चल देते हैं तो फिर हमारा वापस आना क्या हो जाता है, हमारा वापस आना डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे लिए बड़ा हार्ड लगता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन दी फोर्थ स्टैंजा। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence. Here the poet want to say hence means future. Poet says that when after so many ages, so many years in future, I shall be telling this with a comfortable tone. कि मैं जब काफ़ी साल बीत जाएंगे भविष्य के अंदर तो मैं एक बहुत ही आरामदायक तरीके से इस बात को बताऊंगा कि टू रोड डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि जंगल में एक रास्ते में से आगे दो रास्ते निकल रहे थे। एंड आई टुक, फिर हिचकिचाया, आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तो मैंने वो रास्ता चूज किया जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इजी वे पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने वो हार्ड वे चूज़ किया। हार्ड वे के ऊपर हमें थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन उसके ऊपर जो सक्सेस है वो हमारी 100% गेन हो जाती है। आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल दी डिफरेंस। जो मैंने दूसरा रास्ता हार्ड पाथ जो मैंने चूज़ किया था उसी रास्ते ने क्या है, उसी मेरी चॉइस ने मेरे लिए सभी अंतर पैदा कर दिए। यानी कि उसी से मुझे पता चला कि मैंने वो रास्ता जो चूज़ किया था वो सही था या नहीं था। यानी कि कहने का मतलब है कि पोएट क्या कहना चाहता है कि यदि हम जीवन में कोई भी रास्ता चूज़ करने से पहले उसके बारे में नहीं बता सकते कि ये रास्ता हमें सफलता की ओर लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, उसके ऊपर चलने के बाद ही हर व्यक्ति को पता चलता है कि उसने जो रास्ता चूज किया है, जो रास्ता उसने चुना है, वो उसके लिए सही था या उसके लिए गलत था। Here in this poem, the poet want to say about the choice of one option in our life. We should always careful about our choice. There are some rhyming words and rhyming scheme. Now I will explain about the rhyming word and rhyming scheme in this poem stanza by stanza. So in the first stanza, the rhyming scheme. You know rhyming scheme? So rhyming scheme, the rhyming word या rhythm of the लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन, यानी कि हर लाइन के अंतिम शब्द की जो आवृत्ति होती है, जो उसका उच्चारण होता है, उसकी जो रिदम होती है, उसी को हम ध्यान में रखते हुए राइम स्कीम चूज करते हैं। जैसे हमारे जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, वुड। तो वुड में जो अंतिम शब्द की जो आवृत्ति है, जो उसका रिदम है, वो क्या है, ड है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको हम, ए। दूसरे की रिदम क्या है, बोथ है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये डैश से अलग है, तो इसको हम क्या मानेंगे, बी। थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड की रिदम क्या है, वो है स्टूड, ड। और वुड की भी क्या थी, इसकी भी ड। तो इसको हमने क्या माना था, ए, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, इसको भी हम ए मान लेंगे। फोर्थ जो लाइन है उसकी भी क्या है, कुड। तो कुड में क्या है अंत में, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, ए। और अंडर ग्रोथ में ला क्या है, थ। तो इसको हम यहाँ पर बोथ में क्या माना था हमने, बोथ में हमने माना था बी। तो अंडर ग्रोथ में भी क्या आएगा, बी। तो इस स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या बन गई, वो बन गई ए बी ए बी, ए बी ए बी। इसी तरह से सेकंड जो स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम भी ऐसे ही बनेंगी। फेयर में किस चीज़ की रिदम आ रही है, रे, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए। सेकंड में क्या है, क्लेम में क्या है, मैं के रिदम है,
तो इसलिए हम क्या मान लेंगे इसको हम बी मान लेंगे। थर्ड में क्या है, फिर रह की रिदम आ गई वियर, तो इसको हम क्या मान लेंगे, सॉरी इसको हम क्या मान लेंगे बी। इसको हम क्या मानेंगे रह के ये सेम है और इसकी भी रह थी, तो हमने क्या माना है, इसको हम मान लेंगे एयर। देयर में भी रह है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे एयर। और सेम में मैं, और क्लेम में मैं थी, तो इसको क्लेम को हमने क्या माना था बी, तो सेम को भी क्या मान लेंगे बी। तो इसकी भी राइम स्कीम क्या बन गई, तो इसकी भी राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी। इसी तरह से हमारा जो थर्ड स्टैंजा है इसकी भी राइम स्कीम यही बन जाएगी। ले क्यों हम क्या मान लेंगे ए, ब्लैक इसकी क्या बन गई बी, ले और डे तो इसको क्या मान लेंगे ए, वे इसको भी ए, और बैक का ब्लैक और बैक तो बी। इसी तरह से इसमें है साई, तो इसको हम ए मान लेंगे। हैंड्स से, तो इसको हम क्या मान लेंगे बी। आई साई, तो इसको क्या बन जाएगा, ये भी ए है। बाई ये भी ए बन जाएगी, और डिफरेंस और हैंड्स तो क्या बन जाएगी बी। तो इन सभी स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो क्या होगी, वो होगी ए बी ए बी। और जो राइमिंग वर्ड होते हैं, तो राइमिंग वर्ड में हम क्या देखते हैं, राइमिंग वर्ड में हम देखते हैं कि जो लास्ट का जो वर्ड है वो किस किस लाइन में आपस में मिलता है। जैसे इस लाइन में क्या है, वुड, स्टूड और कुड, बोथ और अंडर ग्रोथ, ये हो गए राइमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे, बोथ, वुड, स्टूड और कुड, ये अलग, और ये स्टूड, बोथ और अंडर ग्रोथ, ये दोनों सेम वर्ड। यानी कि राइमिंग वर्ड क्या बनेगी, वुड, स्टूड, कुड, बोथ और अंडर ग्रोथ। इसी तरह से सेकंड में है फेयर, वियर और देयर, क्लेम और सेम। इसी तरह से इसमें ले, डे और वे, ब्लैक और बैक। इसी तरह से इसमें आएगा साई, आई और बाई, और हैंड्स और डिफरेंस। तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड बन जाएंगे। तो बच्चों आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कमी हमारी तरफ से रहती है, किसी बच्चे को अगर फिर भी समझ में ना आई हो, तो वो हमारे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है। दैट्स ऑल।